your karma in the fifth house. I'm very scared actually to tell all these secrets. I know that nobody will follow it because nobody believes in karma. जिसको जो मन होता है वो वही करते हैं, and nobody thinks that they are doing wrong. Okay, so we create three kind of karma, and every karma has the impact on the fifth house. Fifth house means your child. Fifth house means your child. Fifth house controls all of your child as a whole, specific your first child and all. So if you are doing something wrong, doing wrong means you are like harming something physically. Okay, pushing someone fell, beating, actually harming someone. There can be various kind of harms, physical harm caused to someone. So doing harming someone physically, then it is damaging your fifth house from ascendant. When you are mentally torturing someone, you are damaging your fifth house from moon. And when you are neither physically hurting someone or mentally abusing someone, like someone you're misbehaving with someone, torturing someone, that's mental abuse. But when you are not abusing someone or you are not physically harassing someone, but with your shut mouth only you are cursing, you're thinking negative about someone, then you are damaging fifth house from the sun. So where does the impact go? The impact go to your child. So जो गलत काम करते हैं, गलत काम, mentally torturing someone, physically torturing someone, और किसी के बारे में बुरी बात बोलना जो एक्चुअली में बुरा नहीं है, आपको पता है, you know it very well, that person is not bad, but you are discussing wrong thing or thinking wrong about the thing, उसका बुरा होना चाहिए, इस टाइप का अगर आप सोच रहे हो तो you are damaging your fifth house from the ascendant, moon and sun. So if you are doing all those wrong kind of things, better don't opt for a child. शादी मत करना, या शादी कर लो तो बच्चा के लिए ट्राई मत करना, ठीक है? इज़ इट पॉसिबल फॉर यू? गलत काम तो सब लोग करते हैं. फिजिकली अब्यूसिंग समवन का मतलब सिर्फ किसी को पीटना, किसी इंसान को पीटना या टॉर्चर करना, फिजिकली टॉर्चर करना नहीं होता है. फिजिकली टॉर्चर करना किसी को, एक कुत्ते को मारना भी हो सकता है. किसी ने मेरे कुत्ते को जहर दे दिया था कुछ दिन पहले, तो इट कैन बी दैट ऑल्सो, बिकॉज यू आर फिजिकली, किसी को पीटने का ज़रूरत नहीं है. किसी खाने में, पानी में अगर आप जहर मिला दोगे, वो भी फिजिकली हार्मिंग समवन होता है. आप किसी को, किसी का गलत करने के लिए कुछ कर रहे हो. सो इट इज़ नॉट ओनली ह्यूमन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बीइंग ओनली. सो यू आर डैमेजिंग समवन. It can be human being, it can be any animal you are damaging. It is harming your fifth house only. Fifth house and fifth house to fifth house is your ninth house. So it is destroying your luck, and it is destroying luck of your child. बहुत लोग बहुत प्राउड होके बोलेंगे कि yes I have beaten a dog. हाँ मैंने आई किल्ड दिस एनिमल्स. एंड यू डू अंडरस्टैंड, नॉन वेजिटेरियन तो वर्ड ही नहीं लेना है, क्योंकि ऑल माई व्हाट्सएप इज़ फुल ऑफ नॉन वेजिटेरियन पीपल. क्योंकि मेरा तो पूरा, आई ग्रू अप अमंग नॉन वेजिटेरियन, स्टॉन्च नॉन वेजिटेरियंस ओनली, जो एवरी मील में नॉन वेजिटेरियन लेते हैं. सो डूइंग ऑल दोज थिंग्स एंड आफ्टर दैट दे थिंक नथिंग विल हैपन. Yes, sometimes nothing will happen to you, but it will harm your progeny as well as it will harm your parents. Okay, so fifth to fifth is 9. So it will damage your luck also in long run. It will damage your future life. अब future life किसने देखा है? Always we think this way ना. So
If you want to believe it. I have seen many successful, brutal people who are very मैनिपुलेटिंग, दूसरों को दुख देना, दूसरों का डैमेज करना, दूसरों का नुकसान पहुंचाना, ये सब वो करते हैं. एंड दैट डैमेज एक्चुअली हैपन्स टू योर चाइल्ड. एक्चुअली ये जानने के बावजूद बहुत लोगों को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है कि बच्चे को भी कुछ भी हो जाए, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. वो पीपल एक्चुअली जज वंस लाइफ विथ मटेरियल सक्सेस, कि मेरे पास पैसा कितना है एंड मेटेरियलिस्टिक गेन मेरा कितना है. वो सोच के ही लोग गलत काम करते जाते हैं कि आई एम डूइंग ऑल दिस रॉन्ग थिंग्स, सो नथिंग रॉन्ग इज़ हैपनिंग टू मी. So I'm having so much money, I'm having so much materialistic thing, and even after telling all these things which I am telling now, it does not matter to anyone. Most of the people it does not matter, क्योंकि they will not believe. जो गलत काम करते हैं वो ये बिलीव ही नहीं करते कि मेरे गलत करने की वजह से मेरे बच्चे का और मेरे पेरेंट्स का बुरा हो रहा है, मेरे पेरेंट्स का और मेरे बच्चे का जो भी बुरा हो रहा है वो मेरे गलत करने की वजह से हो रहा है. ये कोई बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि बिलीव करने से खुद को चेंज करना पड़ेगा ना. खुद को कोई नहीं चेंज करना चाहता है. वंस अ पर्सन इज़ मेटेरियलिस्टिकली वेरी सक्सेसफुल, दे बिकम वेरी एरोगेंट. उन्हें किसी भी चीज़ में, and why, how can I give this example? Because when my mother met accident, she broke her leg and I was actually chewing leg piece, but that was my last leg piece. उसके बाद मैं कभी नहीं की, because I could relate. Most of the people, you have seen wrong things are happening to your parents, wrong things are happening to your child, but you don't consider the wrong things you are doing, you don't consider them as wrong at all. So I was very very blessed one or lucky one you can say, जिनके पास इतना बुद्धि था ये रिलेट करने के लिए कि मेरी मम्मी का एक्सीडेंट में पैर टूटा है क्योंकि मैं आई वॉज ईटिंग लेग पीस. आई कुड रिलेट दैट. तो आपके पास अगर उतना अकल है तो आप रिलेट करोगे. अगर आपके पास अकल नहीं है, सिर्फ प्राइड है आपके दिमाग में, तो आप कभी भी रिलेट नहीं कर पाओगे. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी. Everybody has to be materialistic in some way, but a balance is very much needed. And meditation is also mandatory. Every child, every parent should teach meditation to every child. Parents को खुद तो पहले करना चाहिए, तब तो वो बच्चे को teach करेंगे. Everyone should do meditation. Why? Because once you do meditation, you will understand what wrong things you are doing. क्योंकि दूसरों को मैक्सिमम लोग ये कंप्लेन लेके आते हैं ना, मेरे हस्बैंड ठीक नहीं है, मेरा बच्चा ठीक नहीं है, मेरा ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम. फर्स्ट यू चेंज योर सेल्फ. आज से वो चेंज शुरू कीजिए कि वॉट एवर योर स्पाउस इज, इट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, बट वॉट एवर यू कैन डू, यू हैव टू डू. बिकॉज वॉट एवर योर स्पाउस, वॉट एवर रॉन्ग थिंग योर स्पाउस डन एंड वॉट एवर रॉन्ग थिंग यू डन, योर चाइल्ड विल सफ़र फॉर दैट. Okay, so you cannot control your spouse because he is a different being, you are a different being. So even living together or living in a distant relation does not matter. So you cannot change your spouse. और इसलिए खुद को चेंज करो कि स्पाउस कुछ भी कर रहे हैं उसका 50% इम्पैक्ट, रॉन्ग इम्पैक्ट आपके बच्चे के ऊपर तो रहेगा ही. सो यू योर सेल्फ एज ए ह्यूमन बीइंग ट्राई योर बेस्ट टू कंट्रोल. आप खुद को जितना कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि आफ्टर योर डेथ यू विल गेट पनिशमेंट फॉर वॉट एवर यू हैव डन. आपके हस्बैंड क्या किए हैं, आपके वाइफ क्या किए हैं, उसका पनिशमेंट आपको नहीं मिलेगा. ओके, सो डू गुड थिंग्स बिकॉज यू विल नॉट गेट punishment or gift for whatever your spouse has done. You will get gift or punishment according to what you have done, and your child also will get pain, trauma and punishment as long as your parents also will suffer for every wrong thing you do. उनको ज़िंदगी में हम मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द पीपल दे डू दिस कि वो छुपाते हैं कि मेरे स्पाउस को या मेरे पेरेंट्स को, मेरे बच्चे को पता नहीं चलना चाहिए मैं क्या गलत काम कर रही हूँ. मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि मैंने छुपा लिया तो ऊपर में एक गधा नहीं बैठा हुआ है. द पर्सन हु इज़ सिटिंग ऑन द स्काई, ही इज़ नॉट एन इडियट, ही इज़ सीइंग एवरीथिंग.
आप अपने स्पाउस से या अपने पेरेंट्स से, अपने बच्चे से क्या छिपा रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो गलत कर रहे हो उसका सबका लिखा पढ़ी हो रहा है। ओके बाय, हैव ए नाइस टाइम।